فورجی اور پشاور زلمی نے شائقین کرکٹ کے لیے ڈی ایچ اے پشاور میں ایک شاندار فین پارک قائم کر دیا۔ فین پارک کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے پشاور نے کیا۔ پارک میں پاکستان سپر لیگ کے تحت کھیلے جانے والے پشاور زلمی کے تمام میچز بڑی سکرین پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ میچز دیکھنے کے لیے آنے والوں کی توجہ کے لیے مزیدار کھانوں کے سٹالز اور بچوں کے لیے وسیع پلے ایریا کا بھی انتظام کیا گیا۔ یوفون 4G نے ایک خصوصی سرگرمی مرکز بھی قائم کر رکھا ہے جہاں شائقین مختلف کھیلوں اور مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور پشاور زلمی کی ٹیم کٹ اور دیگر مصنوعات حاصل کرنے کا موقع پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل اور یوفون 4G کی جدید ترین مصنوعات خدمت سے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یوفون 4G اور پشاور زلمی کے اس اقدام کا مقصد شائقین کرکٹ اور ان کے خاندان کے ہر فرد کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ دونوں اداروں نے اپنی سماجی ذمہ داری کے تحت فین پارک میں ہنرمند خواتین کے لیے مفت سٹالز بھی فراہم کیے ہیں تاکہ وہ اپنی مصنوعات فروخت کر کے روزگار کما سکیں۔ پی ٹی سی ایل گروپ اور پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کے لیے پارٹنرشپ قائم کر رکھی ہے جس کے تحت ملک بھر میں کرکٹ کے فروغ، نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرنے اور شائقین کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں شریک کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یوفون اور پشاور زلمی کی جو پارٹنرشپ ہے یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے۔ پشاور زلمی کیونکہ ٹورزم کے اوپر کے پی کے میں اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہا ہے، تو یوفون کی اس پارٹنرشپ سے ہم بہت مائلیج ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پشاور زلمی کے ساتھ مل کے پاکستان کے پی کے وہ انیکسپلورڈ ایریاز جہاں پہ اسپورٹس پہ پہلے کبھی کانسنٹریٹ نہیں کیا گیا، جہاں پہ ٹورزم کے اوپر کوئی کانسنٹریشن نہیں ہے، ہم اس کو ٹورزم ڈیولپ کریں، ہم کے پی کے کی جو اسپورٹس ہے اس کو ڈیولپ کریں۔ اگر آپ ابھی پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کے اگر آپ دیکھیں جو اس کے ڈائنامکس ہیں کس طرح سے چینج ہوئے آفٹر کے پی ایس ایل کے بعد، کے پی نے جس طرح سے پرفارم کیا، پشاور زلمی نے جس طرح سے پرفارم کیا، تو ابھی مور دین 50% آف دا ٹیم از پختون، آپ کے پختون جو ہے وہ اسپورٹس بنا چکے ہیں۔ تو پشاور زلمی اور یوفن کی پارٹنرشپ کے تھرو ہم بالکل اس میں اور مائلیج ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کے پی کو انشاءاللہ اور ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے لیے اور ٹیلنٹ کو ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سی ای او ایجوکیشن میاں والی کار حادثے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ تفصیلات میاں والی سے چودھری محمد آصف آرائیں کی اس رپورٹ میں۔ میاں والی میں بطور سی او ایجوکیشن تعینات علی شیر سمور کو چند روز قبل بھکر کے علاقہ منکیرہ کے قریب کار حادثہ پیش آیا جس میں سی او ایجوکیشن شدید زخمی ہو گئے۔ علاج معالجہ کے لیے پہلے میاں والی اور بعد ازاں جناح ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق علی شیر سمور کے چہرے اور ٹانگوں پر فریکچر آئے، جناح ہسپتال میں ان کی ٹانگ کا آپریشن بھی کیا گیا مگر صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ محکمہ ایجوکیشن کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے علی شیر سمور کی موت پر دکھ کا اظہار اور حادثہ کو سانحہ قرار دیا گیا ہے۔ سی او ایجوکیشن علی شیر سمور کی آج پاک پتن میں ان کے آبائی شہر میں تدفین کی جائے گی۔ کیمرامین ساجد رسول کے ساتھ چودھری محمد آصف آرائیں، روز نیوز، میاں والی۔ سکھر میں مادری زبانوں کے عالمی دن 21 فروری کے موقع پر ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں شاعراؤں، ادیبوں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد لسانی اور ثقافتی تنوع اور کثیر لسانی کا فروغ ہے جس کا مقصد مادری زبانوں کا تحفظ اور فروغ ہے۔ لسانی تنوع ہمیشہ سے ہماری تہذیب کے بنیادی ستونوں میں سے ایک رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف قومی ثقافتوں سے وابستہ لوگ ہر سال 21 فروری کو مادری زبان کے عالمی دن کے طور پر مناتے ہیں۔ شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سندھی سمیت دیگر بولیوں کو قومی درجہ دیا جائے۔ چنیوٹ میں 21 فروری مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ چنیوٹ میں 21 فروری مادری زبان کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی اسلامیہ کالج سے شروع ہو کر پریس کلب میں آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں پروفیسرز اور پنجابی شاعروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مادری زبان کی اہمیت کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پنجابی ہماری ماں بولی ہے، اس کی اہمیت نوجوانوں میں اجاگر کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ شرکاء نے کہا حکومت مادری زبانوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद ने कहा है कि पूरा शहर डाकू राज में तब्दील हो चुका है। पुलिस जुराइम पेशा अनासर को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं कसूर से अतहर कसूरी की इस रिपोर्ट में। शहर भर में वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला अरूज पर है, जबकि कसूर पुलिस सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ में लगी हुई है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज के नारवा सलूक और नाजायज FIR करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद ने शदीद गुस्से का इजहार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लाहौर की आला क़यादत, सदर लाहौर डिवीजन राय शाहजहां के अलावा शेखपुरा, ननकाना साहब, शाहकोट से मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की। एक जानब रहनुमा पीपल पार्टी डीपीओ कसूर के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब शहर में डीपीओ के हक में फ्लैक्सीज अवेजा कर दी गई हैं। मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए इंतजामिया को अपना रवैया बदलना होगा। किसी अफसर की तब्दीली मसले का हल नहीं, हल सिर्फ मेरिट पर इंसाफ है। कसूर इंतजामिया को सियासी कायदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियस लेते हुए मामले को मिल बैठकर हल करना होगा। अतर कसूरी, रोज न्यूज, कसूर। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने मियांवाली का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट बार में आगाही सेमिनार में शिरकत की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। तफसीलात जानते हैं मियांवाली से चौधरी मोहम्मद आसिफ आराइन की इस रिपोर्ट में। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने मियांवाली का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट बार में आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इदारा के क़याम का मकसद टैक्स अदा करने वाले शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी शिकायत का अज़ाला है। उन्होंने कहा कि किसी भी टैक्स पेयर को FBR की जानिब से किसी किस्म का गैर कानूनी नोटिस आता है या उसे बेजा तंग किया जाता है तो सादा कागज़ पर मुतल्लिका मजाज अफसर के खिलाफ दरखास्त हमारे ऑफिस में जमा करवा सकता है। इस पर बिला मुआवजा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल उनके इदारा को 8000 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 356 फैसलों के खिलाफ सदर पाकिस्तान को दरखास्तें दी गई। उनमें से 346 फैसले बरकरार रखे गए, जो वफाकी टैक्स मोहतसिब की मिसाली कारकर्दगी का आकाश है। वफाकी मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने मियांवाली में वफाकी टैक्स मोहतसिब के रीजनल ऑफिस का भी इफ्तिताह किया। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली गए और वहाँ पर मौजूद मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ राई, रोज न्यूज मियांवाली। सियालकोट में ज़मीर की आवाज़ के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में रैली भी निकाली गई। निजी वेलफेयर के ज़रिए तमाम सेमिनार ज़मीर की आवाज़ में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हम मुआशरे में अमली तौर पर इनकलाब लाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हर इंसान पर फर्ज है कि मुआशरे में मौजूद बुराइयों के खात्मे के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करे। बाद अज़ां कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक और इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों के हक में और इसराइली और हिंदुस्तान के मुखालिफ तहरीर शुदा खुतबे उठाए हुए थे। इस मौका पर शहर ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा की हुई है, जिस पर दुनिया की खामोशी काबिल मुज़म्मत है। आज़ाद कश्मीर में हालिया बर्फबारी के बाइस बालाई इलाकों की मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जिला जेहलम वैली के इलाके वादी लीपा में 4 रोज से शदीद बर्फबारी के बायस लीपा वैली का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुंतक़िल हो गया है। शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से लीपा मोजी शेरकली सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इलाका मकीन बर्फबारी और सड़कों की बंदिश के बायस मुश्किलात से दो चार होने के साथ साथ घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, जबकि वादी में बर्फबारी के बायस बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट का निज़ाम भी मुतासर होने के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लीपा वैली के साथ साथ बलाई, वादी नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, अलीपुर के नवाही इलाके में इंसानियत सोज वाकया। शक की बुनियाद पर नौजवान का सर भवें मूंडने के बाद मुंह काला कर दिया गया। अलीपुर के नवाही इलाके थाना सीतपुर की हदूद में शक की बुनियाद पर मुलजिमान ने नौजवान को फोन करके बुलवाकर नौजवान के सर भवें मूंछें मोड़ने के बाद मुंह काला कर दिया। मुतासिरा शख्स के मुताबिक पंचायत ने दर्जनों अफराद के सामने मेरी तस्दील की है। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। असल मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शकरगढ़ में बीवी को कत्ल करके नाच घर के सहन में दबाकर अगवा का ड्रामा रचाने वाले सफाक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि इसकी बीवी घर से गायब हो गई। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश शोहर के बयान बदलने पर पुलिस ने रवायती तरीका अपनाया तो मुलजिम ने सच बता दिया। पुलिस ने खातून की नाश का घर के सहन से बरामद कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का सिलसिला जारी। हासिलपुर थाना सिटी के हदूद में चोरी और डकैती का सिलसिला न थम सका। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 8 साला बच्ची जख्मी हो गया। हासिलपुर थाना सिटी की हदूद बहादुरी कॉलोनी में 2 नामालूम डाकू मोटरसाइकिल पर सवार जनरल स्टोर में दाखिल हो गए। स्टोर मालिक की मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से राहगीर 8 साला बच्चा जख्मी हो गया। डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। फायरिंग से अहले इलाका में खौफो हिरास फैल गया। हासिलपुर थाना सिटी पुलिस ने जाए वकूअ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मटियारी में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। पुलिस मुलजिमान को लगाम डालने में नाकाम नजर आती है। मजीद तफसीलात जानते हैं मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी से अमन का परिंदा उड़ गया। चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन गया। शहर में लुटेरे आज़ाद और शहरी गैर महफूज हो गए। जिले हेडक्वार्टर शहर मटियारी में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। चोरियां डकैतियां और लूट मार आम हो गया। इंतजामिया गैर संजीदा बदअमनी रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गई। के शहरी कहते हैं कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जिस दिन हम सुकून से बैठ सके। हम आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी मटियारी से मुतालबा करते हैं कि बदअमनी पर ज़ाब्ता किया जाए ताकि हम महफूज रह सकें। कैमरामैन रजब मल्ला के साथ अली फैजान, रोज न्यूज़ मटियारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पुलिस थाना बी डिवीजन की दबंग कार्रवाई। 1 माह कबल 1 करोड़ से जायद डकैती की वारदात को ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। रिपोर्ट करेंगे कसूर से अथर कसूरी। कसूर में बढ़ती हुई डकैती, राजधानी और चोरी की वारदातों पर कसूर पुलिस एक्शन में आ गई। 1 माह कबल बस्ती वनिका में होने वाली हाउस डकैती की वारदात में मुलजमान 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल लूटकर फरार हो गए थे। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने वाकया का नोटिस लेते हुए एसएचओ बी डिवीजन को जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया। थाना बी डिवीजन के एसएचओ वहीद आरफ की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। थाना बी डिवीजन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बुरुकार लाते हुए मुद्दई मुकदमा की करीबी रिश्तेदार मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि इसने अपने 2 भाइयों और दीगर मुलजमान के साथ मिलकर वारदात की। मुलजमान के कब्जा से वारदात के दौरान छीनी गई 36,27,000 की नकदी और 34 तोले तलाई जेवरात बरामद कर लिए। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ बी डिवीजन और इनकी टीम को शाबाश दी। अतर कसूरी, रोज न्यूज, कसूर। एचईसी के ताउन से गवर्नमेंट वुमेन जीसी यूनिवर्सिटी में बेसबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से 10 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद खवातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है। मजीद अहवाल जानते हैं फैसलाबाद से महमूद अहमद की इस रिपोर्ट में। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। गवर्नमेंट जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नेशनल लेवल बेसबॉल टूर्नामेंट का एचईसी के तावन से इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लड़कियों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इस इवेंट पे जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन के प्रोफेसर्स ने कहा, विमेन एम्पावरमेंट की सब बातें करते हैं, इट्स ए प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स दैट। एचईसी को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है पूरी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीमेल टीम्स को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़िल्लुमा नाज़ली की, और उनके साथ साथ डीजी स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन कमीशन सर जावेद अली मेमन साहब के, जिनकी जॉइंट वेंचर से हम ये इवेंट करवा रहे हैं। स्टडी के साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रह सकें। इस पे स्टूडेंट्स ने अपने व्यू शेयर किए। स्टार्टिंग में तो गर्ल्स को अलो ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो मॉडर्न एज से जो मॉडर्न एरा चल रही है, इसमें मुझे लगता था कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स के जो है मैचेस भी हो रही हैं। क्रिकेट में भी पहले नहीं था गर्ल्स के बारे में, लेकिन अब क्रिकेट में भी
फीमेल्स भी कुछ कर सकती हैं। लोग कहते हैं कि जिन्हें मतलब बॉयज़ हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, गर्ल्स को भी करना चाहिए, वो भी हिस्सा ले सकती हैं। मैं अपनी डेफिनेटली GCWF को स्पोर्ट। लड़कियों का स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना हेल्दी एक्टिविटी है जिसको पूरे पाकिस्तान में कंटिन्यू रहना चाहिए। सी वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स का यही कहना है कि फीमेल मेल से कम नहीं है, फीमेल्स को भी उतने ही चांस मिलने चाहिए जितने मेल्स को मिलते हैं। कैमरा टीम के साथ महमूद अहमद, रोज़ न्यूज़, फैसलाबाद। मर्दान तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के माबैन पेंटिंग, फोटोग्राफी और हैंड क्राफ्ट्स के मुकाबलों का मेला सज गया। मेले में तालिब इल्मों के बनाए गए फन पारों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजले हक की इस रिपोर्ट में। मर्दान तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज के तलबा और तालिबात के माबैन हैंड क्राफ्ट्स, फोटोग्राफी और पेंटिंग के मुकाबले मुनक़िद हुए। मुकाबलों में मर्दान, नौशेरा और सवाबी के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज के तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। तालिब इल्मों ने अपने हाथों से बनाए गए पनपारों से स्टॉलों को सजा रखे थे। मुकाबलों का मकसद तलबा को मिस्र में आने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार करना था। बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे ले जाना एक मौका हमने फराहम किया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को मजीद हम आगे लेके जाएं। पेंटिंग मुकाबलों में शरीक मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज के तालिब इल्मों ने निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद पर जोर दिया। ये नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुदरत को, कि इसमें हमारे पास पहाड़ है और क्लाउड्स है, नेचर है, दरख्त है, तो ये सब चीज़ें जो है अल्लाह ताला की कुदरत हमें दिखाती है। यहाँ अगर हम देखें तो हर एक बच्चा एक दूसरे के पेंटिंग को देख के, एक दूसरे के आर्ट को देख के, एक दूसरे के क्राफ्ट को देख के उनमें उसी तरह से मोटिवेशन आ रही है। इजिप्ट में तकरीबन 118 पिरामिड्स है। इजिप्ट पिरामिड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो मैंने उसके ये तस्वीर कशी की है। मर्दान तालीमी बोर्ड के चेयरमैन और दीगर असातिज़ा कराम ने स्टाल्स में रखे गए पनपारों का मुआयना किया और तलबो तालिबात से इनके बनाए गए पनपारों के बारे में मालूमात हासिल की। फजले हक, रोज़ न्यूज़, मर्दान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जिला टंडू अल्लाह यार के इलाके ख्वाजा गोट में कायम सुल्तानाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। मेले का मजीद अहवाल जानते हैं शहजाद बुखारी की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में सालाना स्पोर्ट्स गाला 2024 की इफ्तिताह की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली डॉक्टर सलामुल्लाह खान थे। मजीद अहवाल जानते हैं इशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। मियांवाली के नौजवानों को तालीम के अलावा सेहतमंद तफरीह के मौके फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में तीसरे सालाना स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में किया गया। तकरीब में इसातिज़ा, तलबा, वालिदैन और हर शोबा ज़िंदगी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पंजाब पुलिस और खेलों में शिरकत करने वाले तलबात के दस्तों ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर सलामुल्लाह खान ने कहा कि मियांवाली मरदम खेज खिता है और मियांवाली ने मकामी रवायती खेलों कबड्डी और नेज़ाबाजी के अलावा बैनुल-अक़वामी खेलों क्रिकेट, हॉकी, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में मुस्बाउल हक, शादाब खान, जावेद हुसैन शाह, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद बूटा और जेवलिन थ्रो की इंटरनेशनल प्लेयर सोबिया जाहिद जैसे बड़े नाम पैदा किए हैं, जिन्होंने मुल्क व कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उन्होंने मजीद कहा कि स्पोर्ट्स गाला से यूनिवर्सिटी के तलबा को सेहतमंद तफरीह के अलावा ज़िंदगी में चैलेंजेस से मुकाबला करने का जज्बा और अपनी सलाहियतें बढ़ाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन दानियाल शहजाद के साथ इशफाक अहमद, रोज़ न्यूज़, मियांवाली। मौसम ने ली अंगड़ाई, पतझड़ रुखसत हुआ, बहार की है आमद। बहार का मौसम आते ही नर्सरियों की रौनक बहाल हो गई। नर्सरियों में लगे पौधे शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं फैसलाबाद से महमूद अहमद की इस रिपोर्ट में। पतझड़ का मौसम रुखसत होने लगा और बहार का मौसम आने लगा। बहार का मौसम आते ही नर्सरियों की रौनकें बढ़ गईं। नर्सरियों में लगे पौधे शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगे। मौसम बहार की आमद। बहार के मौसम में खिलने वाले फूल दिलों को लबहाने लगे। नर्सरियों में जा बजा फूल शहरियों को मुतवज्जो करने लगे। शहरी घरों, बागात, जमीनों में पौधे लगाने के लिए खरीदने लगे। कोई फलदार पौधे खरीद रहा है, कोई सायादार और कोई फूलदार पौधे खरीदने लगा। शहरियों का कहना है पौधे लगाना सदका जारिया भी है और नेकी भी।
पौधे लगाएंगे तो माहौल सरसब्ज और साफ सुथरा रहेगा। नर्सरी मालकान का कहना है बहार के मौसम में पौधे खूब परवान चढ़ते हैं। मुख्तलिफ और मुनफरिद इकसाम के पौधे नर्सरियों में मौजूद हैं। इंतहाई मुनासिब दाम में पौधे फरोख्त किए जा रहे हैं ताकि हर कोई खरीद सके। कैमरा टीम के साथ महमूद अहमद, रोज न्यूज, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मौसम में बहार आते ही खैरपुर में हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। शहर भर में लगे पौधों पर भी निखार आ गया। फूलों की मशहूर कौन खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं अरशद शर की इस रिपोर्ट में। मौसम बहार आने से खैरपुर में हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। पुरानी कौमी शाहराह समेत शहर भर के मुख्तलिफ नर्सरियों में लगे फूलों पर भी निखार आ गया। राबेल, मौसमियात, काला गुलाब समेत दीगर फूलों की कुदरती हसन और मशहूर खुशबू से शहरी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ज़ियादुल्लाह लगारी के अहकामात पर रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तालिब खासकली अपने अमले के हमरा स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों समेत जिला खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में दरखत और पौधे लगाए। दरखत और पौधे लगाने पर स्कूल के बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया और शहरियों ने इस अमल को सराहते हुए कहा कि दरखत और पौधे लगाना इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। दरखत गर्मी को दूर करता है जिससे इंसान को बेशुमार फायदे पहुंचते हैं। उस मौका पर फॉरेस्ट ऑफिसर ज़ियादुल्लाह लगारी ने मजीद कहा कि देहाती इलाके, शादी शहीद और लौंग फकीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरखत और पौधे लगाए हैं जिससे आलूदगी से निपटना है और माहौल साजगार हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ अरशद शर, रोज न्यूज, खैरपुर। सिख मजहब के त्यौहार सागा की 3 रोजा तकरीबात का गुरुद्वारा जन्म अस्तहान ननकाना साहब में आगाज हो गया, जिनमें शिरकत के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं ननकाना साहिब से ताहिर महमूद की अपनी रिपोर्ट में। इन 200 सिखों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 21 फरवरी 1921 को गुरुद्वारा जन्मस्थान को हिंदुओं और अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। बेदर्दी से कत्ल और जिंदा जलाए जाने वाले इन सिखों की आखिरी रसूमात इसी गुरुद्वारा के अंदर शहीदी स्थान में अदा की गईं। इन्हों ने गुरुद्वारे दे इज्जत वास्ते गुरुद्वारे तराम वास्ते जाना वारिया ते आई झंड इत्थे अंदर गोलियां चलियां, गोलियां तो बाद अगे लक्ष्मण पुटरा लड़काया, तेलोत बागर जिंदा जलाया। आज आप बैठे ने इन्हों की बदौलत बैठे, इन्होंने अपनी जाना वारियां कुर्बानियां की से बैठे। गुरुद्वारा जन्मस्थान में साका ननकाना साहब की 3 रोजा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हुआ, जिसमें अंदरूनी मुल्क और मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्रियों ने शिरकत की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों ने तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान और मुतरुका वफद मलाक बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। इत्थे बड़े जिहड़े प्रबंध ने बहुत वधिया तरीके नाल कीते गए आ, इस ते बहुत अच्छी सफाई आ। सो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्ने वधिया इंतजाम कीते। आई लव दिस प्लेस सो मच, बहुत सोहना है, सारा कुछ साफ सुथरा, इतना सुंदर लगता है, बहुत ही सोहना लगता है। इंतजामिया की तरफ से तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। साका ननकाना की तकरीबात में शिरकत करने वाले सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के इंतजाम पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ताहिर महमूद, रोज न्यूज, ननकाना साहब। निजी वेलफेयर की जानिब से ढहरकी में स्पेशल अफराद के लिए नए सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं सिकंदर अली सोमरो की इस रिपोर्ट में। तुर्की में पाकिस्तान डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उबाड़ो शहर के लिए नए सेंटर की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। सेंटर के इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार नादिर अकरम खान लगारी इंचार्ज ऑफिसर थे, जिन्होंने सेंटर के लिए माली इमदाद का चेक भी दिया। और इस इफ्तिताई तकरीब में कराची से आई माजूर अफराद की टीम व ढहरकी शहर और गिरदोनवा के इलाकों से बड़ी तादाद में माजूर अफराद और उनकी फैमिलीज ने शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खास को सिंधी सकाफत के तोहफे और शील्ड भी दी गई। हम लोगों की लाइफ बदली है एक डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। उस तरह यहाँ पे गुडकी में जो सेंटर का लॉन्च हो रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे जितने सारे डिसेबल यहाँ पे देखे हैं, तो इंशाल्लाह उनकी भी लाइफ बनेगी, वो लोग भी एजुकेशन हासिल करेंगे, वेकेशनल ट्रेनिंग हासिल करके अपनी लाइफ आसान करेंगे और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करेंगे। जो डिसेबल लोग हैं, जो घर में कैद हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए इदारे बनने। रोजनगर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।